time, well, as Bihar enters the final leg of campaigning, the Gathbandhan is in a bit of a split there as far as the CM phase is concerned. Leader of the opposition, Tejasvi Yadav, has been confident of being projected as a CM phase. Congress remains undecided. Rahul Gandhi Bana sidestepped the question, choosing instead to stress the strength of the Congress-RJD partnership. Even as Tejasvi repeatedly projects himself as the opposition CM face, Congress continues to weigh its options, steer clear of a clear endorsement. तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तेजस्वी प्रसाद यादव ही सीएम फेस होंगे। अभी भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के वो चेयरमैन हैं, बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं और पिछली बार भी 2020 में वही चीफ मिनिस्ट्रियल फेस थे महागठबंधन के। तेजस्वी यादव जी इंडिया गठबंधन का बहुत बड़ा चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा भी की है। लेकिन अभी जो बात चल रही है चुनाव में कौन सा दल, कौन सी सीट, कौन लड़ेगा, क्या लड़ेगा, इस पे लगातार दिल्ली के अंदर बैठकें चल रही हैं, आरजेडी में भी चल रही हैं। तो अभी है कि हम लोग अपना सीटों का समीकरण मजबूत उम्मीदवार मुद्दों के साथ उतारें, उसके बाद ये मुद्दा लास्ट में आएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा और किसके पास क्या जाएगा। Going straight across to Maushmi for more details. Maushmi, this is always a tussle, isn't it, ahead of elections, where the RJD, of course, seeing itself as a bit of a senior partner there in this alliance, would want to project its own leader as the CM face, and that's what exactly is happening. The Congress seems to be keeping its cards very close to its chest at this point in time, isn't it? Absolutely, Sneha. Even as we stand at the Sadakat Ashram, where Mallikarjun Kharge, Rahul Gandhi have arrived, and flag hoisting is going to happen right behind me. This is a symbolic time when there is much speculation over the fact that whether Congress would actually announce Tejasvi Yadav as the face of the entire alliance. But the seat sharing process is on, and that's one reason that you have all this tussle and bargaining tactics that are going on. Right now you can see in the frame Rahul Gandhi along with Mallikarjun Kharge at the Congress headquarters here in Patna, where Kharge had arrived yesterday. Rahul Gandhi there also coming in, and the entire extended Congress Working Committee, you are here trying to deliver a power punch, sending a message to the opposition and also to the allies that it's here to stay. All right, I'm going to come back to you in a moment from now. Maushmi Singh getting in those details. Meanwhile, India Today's Maria Shakil spoke exclusively with Bihar leader of the opposition, RJD's Tejasvi Yadav, in a wide-ranging conversation. The RJD's Crown Prince declared, "Apna time aayega," signaling confidence ahead of the 2025 state elections. Well, as a Mahagathbandhan as it is in place, the big question remains, who will be its chief ministerial face? Tejasvi also reflected on the complex weight of his father, Lalu Yadav's legacy. Is it really a boon or a bane in the current political climate? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह इन्फिल्ट्रेटर्स का इशू उठा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि जो महागठबंधन की पार्टियां हैं, आप और कांग्रेस घुसपैठियों को बचाना चाह रहे हैं। हमें तो यही नहीं पता घुसपैठिए हैं कहाँ, पहले ये तो बताओ। पहले पता तो चले कितने हैं, कहाँ हैं। 20 साल से नीतीश कुमार जी एनडीए की सरकार है बिहार में, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। अगर घुसपैठिया आया है तो आपकी जिम्मेदारी है रोकना।
आप कुछ नहीं कर रहे थे। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घुसपैठी को रोकने का? यानी वो तो अपनी नाकामियाँ गिना रहे। अगर घुसपैठियाँ आए हैं तो बताएं ना कहाँ है, कौन है, इसकी भी तो बात करनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि कहीं कोई घुसपैठी का जिक्र ही नहीं है। तो ये प्रधानमंत्री जी के पास आंकड़े कहाँ से आए? ये क्यों बोल रहे हैं? झारखंड में भी ये इशू लेके गए थे। अगर घुसपैठिया आया, कौन है घुसपैठिया? वही तो वी डोंट नो हुज घुसपैठिया ना। आई वांट टू नो फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर हुज घुसपैठिया, कौन है भाई, और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रोकने की? और अभी भी बाहर अगर करना है तो करो ना, केवल भाषणों में क्यों, केवल चुनाव मुद्दे क्यों बनाना चाह रहे हो आप इसको? ये तो आपकी ड्यूटी है, यानी आप अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभा रहे। आप सही में ईमानदार चौकीदार नहीं हो, बेईमान चौकीदार हो, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री अपने आप को। और प्रधानमंत्री बार बार 20 साल पहले बात उठाते हैं। महिलाएं अगर नीतीश कुमार के साथ खड़ी हैं तेजस्वी, तो वो मुद्दा आपके लिए क्या एक बैगेज है? आप समझ गए होंगे जंगल राज की बात हो रही। 2005, 10, 15, 20, 25 हो गया, एक ही बात, एक ही रट। अभी हाल में एक गुंडा जो मंत्री है, उसने एक पत्रकार की पिटाई की। अगर वो हमारे राज में हुआ होता तो जंगल राज। एक बच्ची 11 साल की रेप करके, रेप किया गया, गैंग रेप हुआ, पीएमसीएच में 4 घंटे तक बेड नहीं मिली। हमारे राज में होता तो जंगल राज। और हर जगह हम ये कह रहे हैं, अपराध बिहार में बढ़ गया है, चरम पर है। अपराधी विजय और सम्राट हो गए बिहार में। तो ये क्या इलेक्शन का इशू है? नए नए कानून बनाए जा रहे हैं अपराधियों को जेल से बाहर निकाल के एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए। तो इस बार ये इशू है, आप भी बोल रहे हैं जंगल राज है। एकदम एकदम